तो उसने उसी जगह पर जो है ये अपना सिटाडेल बनाने की सोची। और अभी मैं दिखाता हूँ वो लाइट हाउस के कुछ पत्थर जो हैं इसमें गेट में इस्तेमाल भी किए गए हैं, जैसे कि ये वाला ग्रेनाइट जो आप देख रहे हो, जो रेड एंड ब्लैकिश जो है ये ग्रेनाइट, ये उसी लाइट हाउस का है जो यहाँ पर पहले हुआ करता था। And this is all the languages and all the letters in the world. I see Arabic, I see Any language you will see here. Any word, any letter you will see it here. इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं, सैकड़ों आदमी, लेकिन जरा भी कुछ भी नॉइज़ नहीं है, कुछ कदर नहीं है। तो इस तरीके से ये पीछे जो दीवारें हैं और ये ऊपर जो छत है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर with the granite. The first step. Why they made that? Because the granite is too strong a stone, so it can take the pressure of all the steps. Okay. Because all the other steps made out of the marble. तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये हमने देख लिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सारी जानकारी उसने शेयर की हमारे साथ गाइडिंग, और बहुत। अब चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं कहाँ लेके जाता है। The Roman theater, we will go down here, but we will go down to this area because this place will take much more time. Okay. Okay, this place here for the paths. Okay. The paths, the public paths, and there is a private paths. Okay. And there is something called the panio. You know the panio? Panio. Inside the bathroom. Okay. Taking the shower in. Oh, okay. Yeah, the Greek room is used to make it. Used to make it. Okay. So this place here is dating back to the 1st or the 2nd century as well. Like the catacomb. Catacomb. Okay. Okay, and it consists of 16 floor here, the theater itself. And we have many columns, many pillars. Okay, so these pillars surrounded the theater. There was a dome above this theater. There was a dome. Yeah, they closed it by a dome. They used to make meetings for the rulers here, or the emperors. Okay. But now that is demolished. That dome is not demolished, and then they demolished this dome because of the earthquake happened here. The earthquake, damaged this dome, and after that they tried to reduce the steps of the theater. The steps was more than this. Okay. They reduced it a little bit here. Okay. So now we must go down to show you many things here. Okay. Alright. So we have arrived in Roman theater और अभी हम देखने जा रहे हैं उसके नीचे से। अभी हमारे टूर गाइड ने जो है हमें थोड़ा एक्सप्लेन किया ये क्या है, क्या चीज़ें हैं अपने। Me cambió la canción. You can see the mosaics on the floor. The moment. Okay, so here you can see that the first step here is with the granite. The first step. Why they made that? Because the granite is too strong a stone, so it can take the pressure of all the steps. Okay. Because all the other steps made out of the marble. Marble. Like you see. Right. Okay. And here we have something here. This is called the mosaic. Mosaic. Yeah. This is supposed to be the visitor center, or the visitor welcoming the visitor for entering here to the audience. Okay. So here we have another scene. We saw this scene here for a royal figure riding a chariot. Yes. Yeah. So the scholars start to believe that there was a challenging happening here by the chariots with the Romans. Okay. In the theater here. This is from the Roman time. I mean, this mosaics. Original. Original. This is the original land. Okay. Yeah.
It's called the mosaic. Yeah, the Romans kind of they used to make this a lot Yeah. in their houses, their palaces. Yes. And here, this is the Greece cross. You see the Greece cross here is inside the circular. This is a type or one kind of the Greece cross. Okay. There are many kinds of them. Okay. We have another kind that and this is all the languages and all the letters in the world. I see Arabic. I see. Any language you will see here. Okay. Any word, any letter you will see it here. Okay. Inside the library, there is over than 8 million documents. लोग आ गए हैं अलेक्जेंड्रिया की द ग्रेट लाइब्रेरी में। 3000 साल पुरानी लाइब्रेरी है और कहा जाता है इसके अंदर तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख के आसपास जो हैं किताबें और दूसरे तरीके के तारीखी डॉक्यूमेंट्स हैं। Behind those stairs, we have two specialized libraries. We have one of them called Taha Hussein Library. It's in honor of our Egyptian writer Taha Hussein, and he was blind. It serves blind and visually impaired people. And beside it, we have another one for all special needs. It serves all special needs except for blind, visually impaired, and you will see next to the cover here, the black tent. And they put it inside the holy carrier. And then camels used to carry it from Egypt to Saudi Arabia. But now, and since 1962 till now, Saudi Arabia is the one responsible for manufacturing it, so we're not transferring it anymore. The last thing we'll talk about here inside the main reading area gonna be the interior design. The ceiling, first, it's inclined with 16.5 degrees to enable the sunlight to enter the main reading area without disturbing readers' eyes or destroying the books. The inner glass, don't know if you can see it, but the inner glass is taking the shape of an eye. And the outer slides of eyelashes. Yeah, it's doing the same function to slope dust and rain away. And these two colors, green and blue, stand for latency and scientifically proven to be the most comfortable colors to the eyes. The pillars we have here, taking the shape of a lotus flower from the top like this, symbolizing the ancient Egyptian culture. We have 66 of them inside the main reading area and 98 of them in the whole library. इस लाइब्रेरी में जो है ना आप देख सकते हैं ये एक सामने प्रिंटिंग प्रेस रखी हुई है। कहा जाता है इस फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है ना इजिप्ट में जो बनाई गई थी वो है अराउंड 1820 समथिंग। और कुछ कैलीग्राफी जो है आपको यहाँ पे दिख रही है ग्रीन कलर में। और सामने अगर आपको दिख रहा हो वहाँ पर वो खाने काबा का जो गेट है और उसके पास में जो एक मिंबर बना हुआ है। तो पुराने वक्त में लाइक टिल 1962 1962 तक जो खाने काबा का किला और गेट वो इजिप्ट से ही जाता था, लेकिन उसके बाद से जो है सऊदी अरब मैनेज करता है तो अब ये नहीं जाता है। तो ये है और नीचे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं लाइक पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इस लाइब्रेरी के बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर फ्लोर पे क्या क्या है। जैसे फ्लोर 3 पे अगर आप देखें तो नॉवल सेक्शन, फ्लोर 1 चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, यंग पीपल्स लाइब्रेरी, ई फ्लोर पे लिटरेचर, स्पेशल नीड्स लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेस। तो हर फ्लोर पे जो है ना कुछ यहाँ पर है, तो उसका पूरा इन्होंने यहाँ पे बना के रखा है। कुछ और जगहें भी इसकी एक्सप्लोर करते हैं। Sehr berühmt in Deutschland. ये जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इजिप्ट के कुछ मशहूर जो लोग हैं उनकी बेसिकली जो है ब्रॉन्ज
में उनका एक जो स्कल्पचर बना के रखा गया है, उनकी मूर्ति है। ये कोई है तौफीक अल हाकिम, पायनियर ऑफ क्लोजेट ड्रामा, ये इसका नाम आप यहाँ देखिए। ताहा हुसैन, डीन ऑफ अरबिक लिटरेचर। यहाँ पर ये कोई हाफिज इब्राहिम, पोइट ऑफ द नाइल, तो ये कोई पोइट है। इसके बाद यहाँ पर अहमद शौकी, प्रिंस ऑफ पोइट्स, ये भी कोई पोइट ही है। इसके बाद यहाँ पर अब्बास महमूद अल अक्काद, ये हैं ऑथर, इंटेलेक्चुअल एंड पोइट। नजीब महफूज, ये ऑथर हैं। तो मोस्टली मतलब यहाँ पर जो ये पीछे जितनी भी पेंटिंग्स हैं, ये मूर्तियाँ रखी, स्कल्पचर हैं, ज़्यादातर ऑथर्स, पोएट और जो लिटरेचर से जुड़े लोगों की हैं, उनकी हैं ये, जो इजिप्ट के मशहूर लोग हैं। ये हम लोग चलते हैं, थोड़ा नीचे देखते हैं क्या है। नीचे के फ्लोर पर जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। अभी जो टूर गाइड हमें बता रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ पर जो दीवारें हैं और जो छत है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बिल्कुल भी यहाँ इको नहीं है, कोई लाउड नॉइज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देख ही रहे होंगे, मैं वॉक कर रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं, सैकड़ों आदमी, लेकिन ज़रा भी कुछ भी नॉइज़ नहीं है, कुछ कदर नहीं है। तो इस तरीके से ये पीछे जो दीवारें हैं और ये ऊपर जो छत है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली वो जो प्रिंटिंग प्रेस जो हम बोल रहे थे कि इजिप्ट में पहली बार जो है ना, करीब अराउंड 1820 के आसपास जो है ना, ये मशीनें जो है बनाई गई प्रिंट करने के लिए। तो ये वही सारी चीज़ें जो अभी हम ऊपर से देख रहे थे। बंद करके ये देखिए, खाने कहवा का जो गिलाफ होता था या जो गेट होता था, उसकी डिज़ाइन है यहाँ पर रखी गई है, जो अभी हम ऊपर से ही देख रहे थे। और ये बुक सेक्शन है, जहाँ पर कई तरीके की जो है ना बुक्स रखी हुई हैं, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये आप जैसे देख सकते हैं मैनेजमेंट, केमिकल। तो ये बुक्स यहाँ पर जो है रखी हुई हैं। स्टूडेंट्स आते हैं और वो पढ़ते हैं, और टीचर्स भी आते हैं, वो भी पढ़ते हैं, वापस रख के फिर यहाँ चले जाते हैं। जैसा नॉर्मली कोई भी लाइब्रेरी है जो फंक्शन करती है, उसी तरीके का है। तो हालांकि ये लाइब्रेरी इस जगह पर बनी थी 3000 साल पहले, और वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर में, वॉर में, भूकंप में, और उसी की जगह पर फिर ये मॉडर्न लाइब्रेरी जो आज की है, उसको हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से बनाई गई है। इजिप्ट के अलावा बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ ने, यूरोप के और अमेरिका के कंट्रीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बनाने में। तो
बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। टाइम हमारे पास कम है तो उसको कवर नहीं कर सकते हैं। यस यस यस, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास तो सारी चीज़ें नहीं देख सकते हैं, जितना मैं कैप्चर कर सका किया। अभी चलते हैं हम लोग फिर से। वेयर आर वी गोइंग नाउ? Now we'll go to the Citadel. Citadel. Yeah, and then we'll go to the mosque, and then we'll take the lunch. Okay? हम लोग आ गए हैं सिटाडेल पे। इसको कहते हैं सिटाडेल 5 वे। इसके बारे में जानते हैं अंदर चल के। ये बाहर से इसकी दीवारें हैं, आउटर है। अभी एंटर होते हैं और देखते हैं गाइड हमारा क्या बताता है इसके बारे में। अंदर जाने के लिए टिकट लगेगा और यहाँ भी टिकट लेने के लिए जो है ना लाइन लगी है। शायद टूर गाइड्स के लिए अलग है, तो गाइड हमारा जो है गया हुआ है वहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। मैं इधर थोड़ा दूर साइड में हो पड़ा हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। अंदर से ये जो सिटाडेल है या जो किला है, सिटाडेल बेसिकली जो है ना किला ही होता है। शहर के बीचों बीच में या किनारे पर कहीं पर बना हुआ एक, जहाँ से जो है मेन लीडर जो है ऑपरेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। पुराने ज़माने में ये सिटाडेल जो होते थे, कभी बीच में, कभी किनारे पर, कभी कहीं पर। इस तरीके के किले जो है बने हुए होते, जहाँ पर रूलर जो है वो होता था, रहता था और वहाँ से सारा जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। अभी इसके हम अंदर भी जाने वाले हैं, थोड़ा सा जूम करता हूँ, वैसा ही नज़र आता है। तो ये जो सिटाडेल है ये सुल्तान काइतबे ने, वो यहाँ का सुल्तान था इन दी 15th सेंचुरी। 1477 के आसपास उसने ये बनवाया था और ये बनाया गया है बेसिकली। एक यहाँ पर होता था लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया का एंशिएंट टाइम्स में, कोई 2000 साल पहले या 2500-3000 साल पहले एक लाइट हाउस यहाँ हुआ करता था। वो लाइट हाउस जो है मतलब ख़त्म हो गया था, गिर गया था, तो उसके यहाँ पे रूइंस थे। उसके जो टूटी फूटी चीज़ें थी वो यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो बाद में ये सुल्तान काइतबे जब यहाँ पे आया, उसने वो चीज़ें देखी, तो उसने उसी जगह पर जो है ये अपना सिटाडेल बनाने की सोची। और अभी मैं दिखाता हूँ वो लाइट हाउस के कुछ पत्थर जो हैं इसमें गेट में इस्तेमाल भी किए गए हैं, जैसे कि ये वाला ग्रेनाइट जो आप देख रहे हो, जो रेड एंड ब्लैकिश जो है वो ग्रेनाइट, ये उसी लाइट हाउस का है जो यहाँ पर पहले हुआ करता था। इसके अंदर आ गए अभी हम, इसके अंदर का नजारा। Vamos a mandarle saludos desde arriba. Ay, bueno, sí. Asomé ahí. No, solo a ver afuera. ¿Por acá o por allá? भी अंदर जा रहे हैं इसके। House, that's about the lighthouse. That's about the citadel itself. It talks about the city under the water here. Okay. Yeah, under water at the horizon sun. We found these dragons everywhere. These colonies. Right under the citadel here. Okay. This is the island. There was an island here. This island was connecting to this place. Okay. Okay. And here, the facade. Okay, and this is this circular thing. It's for the decoration purposes. And we have here the verses from the Quran. Okay. And that's how they chose in the Ottoman period. That's the Ottoman period. Okay. It's related to Qaitbay, the Sultan Qaitbay. Okay. Okay.
Is making fortifications here in the 18th century. Called the citadels. From the citadel and surrounded the citadel by the forts. So the city under the water. Okay, the ruins of that city that is under there.